ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा योग पीठ, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा भगवान चैतन्य के जन्म स्थान की खोज। अब आगे। क्या हुआ मिस्टर दत्ता को? वो बृज किशन को गिरफ्तार करने गए थे। उसके तुरंत बाद ही इनके परिवार का हर सदस्य बीमार पड़ गया। लड़का बीमार है, वो खुद बीमार हैं, यहां तक कि गिरफ्तार करने गए सारे सिपाही भी बीमार हैं। अच्छा। बृज किशन काफी शक्तिशाली तांत्रिक है। उसके काले जादू से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम कर लो। आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। Come in. Please. What happened, Kedarnath Babu? I don't know. All of a sudden I fainted and became very sick. Sounds quite serious. Your temperature is indeed quite high. It's not only me, doctor. All the members of my family have become very sick too. Lali Prasad, how are you? A fever. Don't worry. You won't stay in bed for too long. Show me your tongue. Bhima Prasad, what are you doing here? You're sick. Oh no, doctor. I'm fine. Okay then, sit down. Thank you, doctor. So, young man, what's happening with you? Okay, be good boys.
Mr. Dutta, you and your sons are in a very serious condition. If this medicine doesn't work, I do not know what to do. I will consult Dr. Richardson today. I suspect it is that mystic Biskison who is causing all this. You mean that so-called incarnation whom you arrested last week? Yes. He seems to have great mystic power. However, no matter how powerful he may be, I have no fear, because I have taken shelter of the supreme power. Your faith in God, Kedarnath Babu? Indeed exemplary. When I saw that Biskison, I could understand that he's a tantric who cultivates black magic. What do you mean? These tantrics accumulate their power through the clandestine rituals and store it in their long hair. Did you see how long and strange his hair was? Yes. You know Kedarnath Babu? This reminds me of a passage from the Old Testament. The Old Testament? Yes. It's mentioned there that Samson, he had his power in his hair. Some resemblance indeed, yes. तुम नहीं जानते कि तुमने किसको सलाखों के पीछे रखा है? मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हे! सुन रहे हो तुम लोग? हे! हे! तुम मुझे इस तरह अंदर नहीं रख सकते। तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं भगवान हूं। ए देखो देखो, भगवान जेल में आए हैं। भगवान जेल में है, सीधे वैकुंठ से उतर कर आए हैं। हाँ, मैं ही सबसे बड़ी ताकत हूँ। अपने आप को भगवान कह हे मलच्छो, मैं हूं भगवान का अवतार ब्रिज किशन। तुम मुझ पर मुकदमा चलाओगे, मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा तुम सबको। क्या करो तुम लोग? मेरे बाल मत काटो। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। Hello, Mr. Dutta. Ah, good day, doctor. Good day. Please sit down. You're looking well. Thank you. It's all because of your treatment. Well, I deserve no credit. I just cut Bishkishan's hair and you became cured. Doctor, you know it's because of your treatment. Not only did you give me the right medication, but you got rid of the root cause of the disease as well. But Mr. Dutta, his hair will grow back within a few weeks. What shall I do then if he gets back his powers again? I wouldn't let that worry me, doctor. We've made arrangements to cut his hair twice in a week. And we'll continue doing that till the new moon. By that time, he'll be completely powerless. Forever. Welcome, Mr. Dutta. I was rather eagerly waiting for you. I'm deeply honored, sir. Come, let's go in the next room.
please. Why have you sent this letter, Mr. Datta? As you can see, sir, I wish to resign from my service. Yes, indeed, I can see that. But why? Her Majesty's government needs efficient administrators like you. No, no. You must withdraw your resignation. By resigning your service, you will put your district in crisis. We'll not accept your resignation. I'm sorry, sir. I have made up my mind. I received a call from my inner self to perform a greater service. What could be greater than this? It is indeed a greater service, sir. It is a service to the Lord of the universe. You don't have to resign to serve the Lord. I have embarked on a mission, sir, to spread the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the incarnation of Lord Krishna in this age. But why does that require you to sacrifice your job? My job is a very small thing to sacrifice, sir. I'm willing to sacrifice my life for this mission. Then, Mr. Datta, I suggest you take a leave of absence from your post, complete your mission, and then return and perform your duty. Leave, sir? How many days leave will you grant me? As much as you require. Then, sir, I'm afraid it must be forever. Oh, then I understand your mind. Nevertheless, I would rather give you a leave of absence indefinitely than accept your resignation. सर, आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है। सरकार बाबू, मैं बस छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये ऑफिस में मेरा आखिरी दिन है? नहीं सर, मुझे पता है आप ऑफिस से हमेशा के लिए जा रहे हैं। असल में मैं तो अपना इस्तीफा देना चाहता था, पर छोटे लाट साहब ने मना कर दिया। उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए यहां से छुट्टी लेने का अनुरोध किया है। मैं जानता हूं, कई और लोग भी ये जानते हैं। सर, आमतौर पर जब भी कोई जाता है तो एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है, पर आपके मामले में तो ऐसा भी नहीं है। इतने सालों की लगन पूर्वक सेवा के बाद भी आपको कोई पहचान नहीं मिली है सर। देखो, मैंने जो किया है अपने देश के लिए किया है, और वैसे भी इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि मुझे आपका, आप सभी लोगों का प्यार और सभी का पूर्ण सहयोग मिला है। पर आप इतने महत्वपूर्ण पद से अचानक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं सर? मैं समझ नहीं पा रहा। इससे भी बड़ी सेवा में हिस्सा लेने के लिए। तो क्या आप कोई और नौकरी करने जा रहे हैं सर? मैं ईश्वर रूपी सर्वोच्च सत्ता की सेवा स्वीकार कर रहा हूं। पता है सरकार बाबू, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह संदेश दिया था कि जीवन की वैधानिक स्थिति ईश्वर की सेवा में ही है। वो ईश्वर के समान होते हुए भी उससे बहुत भिन्न है। इसलिए मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। मैं काफी समय से इस सेवा में जुड़ने की सोच रहा था, और अब उनकी कृपा से मैं इस कार्य के लिए नियुक्त हो गया हूं। सर, अब मेरी बारी। चलो चलो, ये देखो 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 क्या है? हाँ? ओ, ये मेरी चाल है। कौन है वहां? क्या चाहिए? मुझे दान चाहिए। दान चाहिए? दिखने में तो सज्जन और तंदुरुस्त भी दिख रहे हो, पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं हर किसी के घर घर जाकर दान एकत्रित कर रहा हूं। यह कार्य सिर्फ तभी संपन्न हो सकता है जब हर कोई अपनी इच्छा से थोड़ा थोड़ा योगदान दे। हाँ, देख रहा हूं, तुम भगवान के नाम पर पैसा चाहते हो। हाँ? और तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा। अरे केदारनाथ बाबू, तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये तो प्रसिद्ध मजिस्ट्रेट केदारनाथ दत्ता है। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट? हाँ। माफ कीजिएगा केदारनाथ बाबू, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कृपया अंदर आइए। आइए आइए। हाँ, आइए आइए प्लीज। मैं समझ सकता हूं।
बैठिए, आइए बैठिए। मुझे माफ कर दीजिएगा केदारनाथ बाबू, दरअसल मैं वो नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है। लोग तरह तरह से पैसा इकट्ठा करने की करते हैं, आप सच्चाई कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा? केदारनाथ बाबू, चैतन्य महाप्रभु के मंदिर निर्माण की योजना के बारे में हमें भी बताइए। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाने का संकल्प किया है। अच्छा। श्री महाप्रभु के गायब होने के बाद उनका स्थान भी लुप्त हो गया था। हाल ही में हमने उस स्थान का पता लगाया है और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि वही स्थान श्री महाप्रभु का असली जन्म स्थान है। ये जगह कहाँ है? ये कृष्णनगर से 5 कोस दूर है और उस जगह पर मैंने श्री महाप्रभु के मंदिर का निर्माण का निश्चय किया है। यदि मैं चाहता तो मंदिर के निर्माण के लिए मेरे धनी साथियों से पैसा एकत्रित कर सकता था, पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन में बिना जाति धर्म की परवाह किए हर किसी को शामिल करना चाहते थे। इसलिए मंदिर निर्माण के लिए मैंने यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का निश्चय किया और इसी निश्चय की वजह से मैं आप सबके पास आया हूं। लोग खुशी खुशी अपनी इच्छा से जो भी दान करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। उस दान से हर किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा का मौका प्राप्त होगा, यही मेरा उद्देश्य है। मुझे पक्का यकीन है कि श्री महाप्रभु की कृपा से एक दिन मंदिर का निर्माण कार्य जरूर पूरा होगा। मैं भी वहां जाना चाहूंगा केदारनाथ बाबू, और मुझे लगता है कि मेरे दोस्त भी वहां जाना चाहेंगे। क्यों, चलोगे ना? हाँ हाँ, हम सब आपके साथ जाना चाहेंगे। अवश्य आइए, मैं आपको वहां ले चलूंगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो, यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाने वाला है। हाँ, अब तुम ही बताओ। हाँ हाँ, नहीं, बोलो। चलो इनसे पूछ लेते हैं। महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं? महोदय, ये बताइए आप यहाँ क्या बना रहे हैं? असल में हम श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इतनी सारी जगह के बावजूद यहाँ ही क्यों, और वो भी एक मुसलमान गांव के बीचों बीच? क्योंकि यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। देखा, जो मैंने आपको इस जगह के बारे में बताया था वही सत्य है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया था। क्या आपको नहीं पता श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नदी के उस पार मायापुर में है? मुझे नहीं पता कि उस जगह को मायापुर के रूप में किसने पहचाना है। मेरे पढ़े हुए पत्रों और लेखों के अनुसार जो अब तक मैंने पढ़ा है, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। हाँ, आज ये एक मुसलमान गांव हो सकता है, पर 400 साल पहले ये नहीं था। देखा तुम लोगों ने, पुराणों की बातें बिल्कुल सच हो रही हैं। पुराण में लिखा है कि कली के युग में झूठे यकीन से प्रभावित होकर अज्ञानी लोग इस तरह से नकली पूजा स्थलों का निर्माण करेंगे। क्या आपने भक्ति रत्नाकर पढ़ा है? नहीं? तो सुनिए, भक्ति रत्नाकर लिखा है श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीबी थे। उन्होंने लिखा है कि गंगा नदी के पूर्वी तट पर है मायापुर गांव, जहां पर जन्मे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान। ये हुआ पहला प्रमाण। अब विरोध करने के लिए जब प्रभु चांद काजी के पास गए थे तो उन्होंने नदी पार की थी। इसका जिक्र कहीं आया था? चांद काजी की समाधि नदी के पूर्वी तट पर है, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये हुआ दूसरा प्रमाण। इसके अलावा जब मैं पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि गांव को मायापुर के तौर पर जाना जाता था। बाद में मुसलमानों ने इस जगह का नाम रखा मियापुर। उच्चारण में भिन्नता के बावजूद समानता है, यह बोलचाल से स्पष्ट होता है। एक बात और, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो नवद्वीप में रहते हैं, 140 साल की उम्र है उनकी, और वो इस युग के सबसे ख्याति प्राप्त वैष्णव हैं। वो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। उन्होंने खुद यहां आकर इस जगह को देखकर पहचाना है कि यही जगह श्री महाप्रभु का असली जन्म स्थान है। और सुनो, अपनी बढ़ती उम्र की वजह से वो चल नहीं सकते हैं, अपंग हैं वो। उन्हें उठाकर यहां लाया गया था। इस जगह को देखते ही वो उछल उछल कर नाचने लगे। अब ये हुआ चौथा प्रमाण। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे कि कौन झूठी पूजा करके इन स्थलों का निर्माण कर रहा है। आओ चलते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये गंगा और सरस्वती का संगम स्थल है। सरस्वती को यहाँ जलंगीर कहा जाता है। जल यानी के पानी, गिर यानी की विद्या, यानी सरस्वती देवी। नवद्वीप का मतलब होता है 9 द्वीप। यहाँ 5 तो पूर्वी किनारे पर हैं और 4 पश्चिम में। वो एक घेरे में 8 पंखुड़ी वाले खिले पुष्प हैं। और मध्य में जो द्वीप है उसे जानते हैं क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप ही है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। इसके चारों ओर जो द्वीप हैं वो 8 द्वीप हैं, जिन्हें कहते हैं एक सुमित द्वीप, गोद्रम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलाद्वीप, ऋतुद्वीप, जहानुद्वीप, मदोद्रम द्वीप और रुद्राद्वीप। आओ आओ संभल के। हाँ चलो चलते हैं। ये देखो, यही वो जगह है जहां श्रीवास ठाकुर का घर था। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से लगभग 200 यार्ड उत्तर में। यहाँ पर महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त भगवान का पवित्र नाम जपा करते थे। एक दिन सुबह श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पर आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्रीवास, श्रीवास, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? आपका ये कैसा सवाल है मेरे प्रभु? आपको तो पता ही है कि मैं अपने श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ। ये सब जानते हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। तुम नहीं जानते श्रीवास कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तो आप ही बताइए ना मेरे प्रभु कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, देखो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। कहो श्रीवास, कुछ देखा तुमने? आप प्रभु 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 प्रभु। आओ श्रीवास, हमारे प्रभु के स्नान का इंतजाम करें।
गंगादास, तुम्हें याद है या नहीं? याद करो, काफी समय पहले मुसलमान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धर्मांतरित करने वाले थे, और तुम उस विपदा से बचने के लिए गंगा नदी की ओर भाग गए थे। तुमने सोचा कि तुम नाव से गंगा नदी पार कर लोगे, परंतु जब तुम गंगा नदी के किनारे पहुंचे तब तुम्हें वहां कोई नाव ही नहीं मिली। फिर तुमने अपना धर्म नाश होने से बचने के लिए, अपनी पत्नी और पुत्रियों की यातना से बचने के लिए आत्महत्या का निर्णय ले लिया। तुम्हें और कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। तुम आत्महत्या करने ही वाले थे कि तुमने नदी में एक नाव को आते हुए देखा। तुमने नाव वाले से कहा कि मैं तुम्हें अपनी जाति, धर्म, जीवन और आत्मा सब सौंपता हूं, बस नदी पार करा दो। क्या तुम जानते हो गंगादास कि वो नाव वाला कौन था? गंगादास महाप्रभु के अध्यापक हैं और वो उनके पिता के उम्र के हैं, एक बूढ़े ब्राह्मण। ये घटना महाप्रभु के जन्म के काफी पहले की है, पर उन्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? यही तो महाप्रभु की लीला है।